Hello and welcome to this very special episode of Frankly Speaking, and it's after ages that I get my friend Manish Tiwari, senior leader of the Congress party, to come on the show, former union minister. Sorry Manish, calling you a friend. I hope you will not be thrown out of the Congress just because I've called you a friend, because that's the way the standoff has gone between Times Now group and the Congress party. And I have to use the excuse of you becoming an author, writing this book about national security, to actually get your attention and get you on our platforms. Thank you very much, Manish Tiwari, for joining me. Well, first of all, Navika, allow me to reciprocate your sentiments. We've been friends for a very, very long time. And it's unfortunate that this hiatus exists. And I think we should all proactively try and resolve this situation, primarily because I think democracy requires a diversity of voices on every news platform. Absolutely true. And 10 flashpoints of national security in 20 years. Manish Tiwari, what took you so long to get into this space? Because you've been in the strategic affairs, in the internal security situation, talking at various fora on these issues. What took you so long to pen down a book which looks at current events, in fact goes back right up to 98 and 2000, the Vajpayee Kargil period, and you've spoken about all that. What took you so long to pen these thoughts down and to raise some very substantive issues and difference in approaches between governments? Have we lost that space where we look at governments not just from a political standpoint but from an approach to various issues standpoints, in the current context, of course, strategic issues? Well, Navika, you asked a couple of questions and let me try and answer them very quickly off the bat. What took me so long? Primarily as a grassroots activist politician who has a constituency to look after, you really do not get the time. And COVID-19 and the lockdowns actually gave me the time to be able to put pen to paper and put my views out there. So therefore, that's the explanation for why this fourth book came at this point in time. Number two, I think it's seminally important that a discussion on national security, on strategic affairs, should not only be left to the practitioners and the specialists, while they do have domain knowledge and understanding. But I think the issues are too vital and too germane to really be confined to a very, very rarefied echelons of our society. These are discussions which need to be had in a sober atmosphere, in a reflective atmosphere, because ultimately the security of the nation concerns us all. बिल्कुल आपने सही कहा, देश की सुरक्षा हम सब के लिए इंटरेस्ट की बात है, और एक्सपर्ट्स इस पर बात करें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आम आदमी, आम पॉलिटिशियन, आम नेता जो पार्लियामेंट में है, संसद में रहता है, हम सबको इसकी बात करनी चाहिए। और मैं शुरू करती हूँ उस दौर से जहां आप कारगिल के बारे में बात करते हैं। आपने कहा कि उस वक्त चर्चा हुई थी कि किस तरह से ये इंटेलिजेंस फेलियर था। आप ये भी व्यक्त करते हैं कि चर्चा में फेलियर पर एक दूसरे पर उंगली उठाना शायद इतना ज़रूरी नहीं था जितना ज़रूरी ये था कि एक देश के हिसाब से, एक राष्ट्र के हिसाब से हम इसका कैसे जवाब देते। आपके विचार से उस वक्त जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था? देखिए, आपने नविका जी कई सवाल इकट्ठे पूछे और मैं एक एक करके उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया
और उस परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया और इससे जो दक्षिण एशिया की सामरिक परिस्थिति थी और दुनिया की सामरिक परिस्थिति थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और वाजपेयी जी ने अपने विवेक से ये सोचा कि इस वाकया के बाद पाकिस्तान से हमको जो ताल्लुकात हैं उनको एक बार समानांतर करना चाहिए। और वो लाहौर अपनी बस लेके गए, एक बहुत अच्छा माहौल बना। ऐसा लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन और शांति का माहौल होगा, पर अमन और शांति की जगह उनको जवाब में कारगिल मिला। 160 किलोमीटर लंबा और 9 किलोमीटर गहरा घुसपैठ पाकिस्तान की फौज ने किया। और ये सवाल जो कारगिल युद्ध के बाद रिव्यू कमेटी बनी, जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी के बहुत ही सम्मानित पिताजी मिस्टर के सुब्रमण्यम, जो भारत के सबसे होनहार सामरिक थिंकर थे, उन्होंने कहा उस रिपोर्ट में कि कारगिल में जो घुसपैठ हुई उसको ना पकड़ पाना या उसकी ना खबर होना भारत का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। और उसके बाद उन्होंने अपने रिपोर्ट में कई ऐसे सुझाव दिए कि किस तरह से ये ठीक किया जा सकता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 21 साल बाद जब चीनियों ने अप्रैल 2020 में भारत की सरजमीन में घुसपैठ की तो वही परिस्थिति हमको दोबारा से देखने को मिली। तो आप समझते हैं ये पॉलिटिकल फेलियर था? आप समझते हैं इस पे जो तर्क वितर्क उस समय हुए और आज तक जो चले आ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में, वो सही हैं? एक दूसरे पर उंगली उठाने से इसका समाधान निकल सकता है? इस पर आपका क्या रवैया? देखिए, मेरा ये मानना तब से रहा है कि कोई राजनीतिक फेलियर नहीं था। मैं कोई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर टोका टाकी या टिप्पणी नहीं करना चाहता और इसीलिए मैंने ये बात कही कि वाजपेयी जी बहुत ही एक अच्छी सोच के साथ अपनी बस लाहौर लेके गए थे और उसकी जवाब में जनरल मुशर्रफ ने उनको ये कारगिल की घुसपैठ दी। बुनियादी सवाल ये है, जो सवाल कारगिल रिव्यू कमेटी में भी उठाया गया था, कि इतनी बड़ी घुसपैठ के बारे में हमको पता कैसे नहीं चला। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाजपेयी जी या उनकी सरकार के ऊपर कोई टोका टाकी की जा रही है, पर अगर पाकिस्तान की तरफ से इतनी बड़ी घुसपैठ होती है और हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं रहती, या आप चीन ने इतनी बड़ी घुसपैठ की है उसकी जानकारी अगर हमको नहीं रहती, तो इस बात पे तो चर्चा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि निरंतर और लगातार ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों होता है। तो मनीष तिवारी जी, आपने पाकिस्तान और चीन दोनों की बातें कही और ये दो अलग अलग टाइम पीरियड की बात है। तो आप कहते हैं कि वाजपेयी पर उंगली उठाना या मोदी पर उंगली उठाना सही नहीं है। इशू ये है कि हम ये इशू रिजॉल्व कैसे करें, हम अपनी इंटेलिजेंस या कहें मॉनिटरिंग किस तरह बेहतर करें। क्या इस तरह की चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए और क्या हर चीज तू मैं पर ही शुरू होती है और खत्म हो जाती है? क्योंकि पोजीशंस दोनों तरफ हमेशा इस तरह से लगते हैं कि मिल बैठकर बातचीत करके कोई हल निकालना शायद इम्पॉसिबल हो चुका है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि जिस तरह का संवाद हमारे राजनीतिक क्षेत्र में रहना चाहिए, उस राजनीतिक पृष्ठभूमि में वो संवाद नहीं रहा और ना ही वो संवाद का स्तर रहा है। और हर चीज एक तू मैं, तूने ये किया, मैंने ये किया, उस तक सीमित रह जाती है। और इसीलिए वर्ष 2011 में मैंने एक निजी प्राइवेट मेंबर्स बिल संसद के सामने समक्ष रखा था। और आज बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है
कि आज मैं उस बिल को फिर दोबारा से संसद के समक्ष रखने जा रहा हूं कि भारत का जो खुफिया तंत्र है उसको एक लीगल अमली जामा पहनाने की जरूरत है और उसके ऊपर संसदीय ओवरसाइट की जरूरत है। और ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। और जब शिवशंकर साहब ने इस किताब का विमोचन किया, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि पिछले 20 साल में भारत की सामरिक जो परिस्थिति है वो किस तरह से उजागर हुई। पर जब राहुल गांधी जी हर बात पर चीन को उठाकर इस तरह के ट्वीट करते हैं और संवाद ट्वीट्स के जरिए होने लगता है, तो आपको लगता है कि इन संगीन मुद्दों पर बहस कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है? और फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है, और जवाब लाजमी भी है कि अगर आप सवाल उठा रहे हैं चीन पर, तो जब डोकलाम हो रहा था तो राहुल गांधी जी चीन के एम्बेसडर के साथ खाना पीना क्यों कर रहे थे? राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे क्यों आ रहे थे? इसके कई एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, इसके कई जवाब दिए गए हैं, लेकिन ये ट्वीट के जरिए जो राजनीति होती है, क्या ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हमारी सुरक्षा के जो कंसर्न्स हैं, हमारी सुरक्षा के जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है एज इंडियंस? मैं नमिका जी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो भारतीय जनसंघ के कुल 4 सांसद थे भारत की संसद में। उनमें से एक सांसद थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ये कहा कि चीन की परिस्थिति के ऊपर एक विस्तृत चर्चा संसद में होनी चाहिए। उस समय अभिषेक सिंघवी साहब के जो पिताजी थे, एलएम सिंघवी साहब, बहुत वरिष्ठ वकील थे, वो भी उस संसद के सदस्य थे। और उन्होंने ये कहा कि ये बहस गोपनीय होनी चाहिए, द हाउस शुड बी इन अ सीक्रेट सेशन। और इस बात को नेहरू जी ने नकार दिया। और उस तरफ चीन से युद्ध चल रहा था और 7 दिन निरंतर लगातार 7 नवंबर 1962 से लेकर 14 नवंबर 1962 तक संसद के दोनों सदनों में बहुत विस्तृत चर्चा चीन के ऊपर हुई। और चर्चा बहुत ही रचनात्मक थी। किसी ने भारत की सेना का मनोबल गिराने की कोशिश नहीं की। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अप्रैल 2020 में चीन की घुसपैठ होती है और आज नवंबर 2021 हो गया, संसद में एक बार इसकी चर्चा नहीं हुई है। जितने सवाल हम लोगों ने पूछे चीन की घुसपैठ को लेकर, चाहे मैंने पूछे हों, चाहे सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका उल्लेख किया है, उन्होंने पूछे हों, सरकार ने किसी भी सवाल को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। तो अगर संसद में बहस नहीं होगी, संसद में चर्चा नहीं होगी, तो फिर लाजमी है कि जो चर्चा सड़क पे होगी उसका जो स्तर है वो कभी वो नहीं रहेगा जो किसी भी बहस का स्तर संसद में होता है। देखिए, कल रात बहस हुई कोविड-19 के ऊपर, हर व्यक्ति ने अपना तर्क वितर्क रखा और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई कि ये नया वेरिएंट आया है, इससे किस तरह से निपटा जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम चाहते हैं कि संवेदनशील, संगीन, गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर एक रचनात्मक बहस होनी चाहिए, तो उसकी सही जगह संसद है। और आज भी आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि चीन की परिस्थिति के ऊपर एक व्यापक बहस संसद के दोनों सदनों में होनी चाहिए। लेकिन मनीष तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन लीडर्स के साथ चर्चा जरूर की थी। ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाकर एक क्लोज डोर प्रेजेंटेशन भी दिया था चीन के इशू पर। इशू ये नहीं है कि चर्चा कौन नहीं कर रहा, इशू ये है कि क्या हर चीज
तमाशा है? क्या देश की आंतरिक सुरक्षा की जो चर्चा है वो एक तमाशा बनकर रह जाएगी? और ये बात लाजमी है क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, जब वो हर चीज को ट्विटर के दौरान कहते हैं, भाषा इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, चौकीदार चोर है, राफेल पर और तमाम इश्यूज पर, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूं, जनता में अक्सर चर्चा होती है कि ये स्तर क्यों इस तरह से है। प्रधानमंत्री ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑपोजिशन लीडर्स को ब्रीफिंग दी थी, उसके बाद जो सवाल जवाब बाहर आकर हुए, बालाकोट के बाद जिस तरह से प्रूफ मांगा गया कि सिर्फ और ये नवजोत सिंह सिद्धू आपके पंजाब के राज्य से आते हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं वहां, उन्होंने कहा वहां तो कुछ पेड़ पौधे ही गिरे और यहां कुछ हुआ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद मांगा गया कि हर चीज का प्रूफ प्रोवाइड करिए, संजय निरुपम जी ने किया। इस तरह के वातावरण में क्या कोई चर्चा संभव है? दिल पर हाथ रखकर कहिए, ये सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये भारतीय इंटरेस्ट की बात है, इंडियन इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और देशवासियों की बात है। इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जवाब दीजिएगा। नमिका जी, देखिए, आप मुझे नहीं मालूम कि पत्रकारिता में कब आई थी कब नहीं आई थी, पर मुझे याद है कि जब मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं 87-88 की बात करता हूं, जिस सत्ता पक्ष की आप बात कर रहे हैं, यही लोग थे जो सड़कों पर रोज नारे लगाते थे, बोफर्स के दलालों को जूते मारो सालों को। ये कोई भाषा थी जिसका प्रयोग करना चाहिए था? तो अगर आप संवाद की बात करते हैं, उस संवाद की परंपरा किसने डाली, उसकी तय में जाने की जरूरत है। और जहां तक रही बात की प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष के नेता थे उन लोगों को ब्रीफ किया था, देखिए, कुछ नेताओं को ब्रीफ करना और संसद में चर्चा करना दो अलग अलग चीजें हैं। संसद जो भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, एक बड़ी गंभीर संस्था है, और जो लोग 20-20, 30-30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। तो इसलिए बहुत पाक साफ होकर सरकार को जो परिस्थिति है चीन को लेकर, वो संसद के समक्ष रखनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो बहस है वो पूरी तरह से रचनात्मक रहेगी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि सितंबर 2020 में जब संसद में ये मांग उठाई गई थी, तो सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि जितने राजनीतिक दलों के नेता हैं उनसे चर्चा होगी। पर जहां तक मेरी जानकारी है वो चर्चा नहीं हुई, सरकार ने वो चर्चा नहीं करवाई। तो इसलिए आज भी समय है कि उसके ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए। और जहां तक संवाद की बात है, संवाद का स्तर सही रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसलिए अगर एक तरफ से वार होता है, फिर पलटवार उससे तीव्र भाषा में होता है, फिर पलटवार उससे उग्र भाषा में होता है, और फिर संवाद बिल्कुल विचलित हो जाता है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी हम सबकी बनती है, और बहुत गंभीरता से खासकर संवेदनशील मुद्दों के ऊपर मेरा ये मानना है, हर राजनीतिक दल को, हर राजनेता को, हर ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक स्पेस में है, उसको एक शालीनता से, गंभीरता से अपनी बात कहनी चाहिए। राहुल गांधी इंक्लूडेड? देखिए, उसमें सारे इंक्लूडेड, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंक्लूडेड। मैं इसको, क्योंकि मेरी किताब के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, पर भारत में एक ये भी परंपरा थी कि जब हमारा कोई भी नेता भारत से बाहर जाता था, तो कभी जो आंतरिक राजनीतिक हालात हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होती थी। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो पिछले 7.5 वर्ष में टूटी है, और उसके बाद उसके ऊपर कभी अलग से चर्चा करेंगे।
मनीष तिवारी जी, हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस को कई समय तक कफन चोर कहा जाता था और पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता था, ये भी एक परंपरा रही है। खैर, बहरहाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किताब के माध्यम से जो आपने कहा है, कांधार हाईजैक, कांधार हाईजैक, कारगिल, ये जो माइलस्टोन्स हैं एक तरह से, जिन सिक्योरिटी इश्यूज का आप उल्लेख कर रहे हैं इस किताब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजनीतिक बहस में बार बार आते हैं, संसदीय बहस में बार बार आते हैं। और आपने कहा, एक बार आपकी चर्चा हुई थी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जसवंत सिंह, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, लेट मिस्टर जसवंत सिंह, और उन्होंने कहा था कि ऐसा सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी कोई पैसे देकर लोगों को नहीं छुड़ाया था, लेकिन ये भी बताया था कि तालिबान के साथ कोई हमारी बातचीत नहीं थी, बहुत मुश्किल था जो IC-814 हाईजैक हो गया था उनके पैसेंजर्स को वहां से छुड़ाना। और आज तक वो जो आतंकवादियों को छोड़ा गया था, मसूद अजहर को छोड़ा गया था, वो अब तक राजनीतिक नोकझोंक का एक अहम हिस्सा है। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पहले तो आपकी बातचीत क्या हुई थी जसवंत सिंह जी से, बिहाइंड द सीन्स थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लिखा आपने बहुत सटीक और थोड़ा सा है। और दूसरी बात जो मैं पूछना चाहती हूं, क्या कोई और सरकार होती तो क्या करती? आपकी सरकार होती तो क्या करती? देखिए, जहां तक स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह जी का सवाल है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मैंने किताब में ये बात लिखी है कि मुझे इस बात पे सदा आश्चर्य और हैरत रही थी कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कड़ा फैसला, जिसका उनको पूरा अंदेशा होगा कि एक राजनीतिक बैकलैश होगा, वो फैसला किस तरह से ले सकता है, ये मेरे मन में एक सवाल था। और जेपीसी के वो मेंबर थे जो 2G के ऊपर जेपीसी बनी थी, मैं भी उसका सदस्य था। वो थोड़ा जल्दी आ जाया करते थे, मीटिंग 11 बजे शुरू होती थी, वो 10:15 10:30 आ जाया करते थे। मैंने अक्सर 2-3 बार देखा और फिर एक दिन मैंने उनसे जाके पूछ ही लिया। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या वजह थी कि आप खुद कंधार गए, और उन्होंने मुझसे हंस के कहा कि मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ, रात की 9 बजे की खबर मैं नहीं सुनना चाहता। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं होगा, और फिर उन्होंने बड़े विस्तार से मेरे को बताया कि देखिए, तालिबान के साथ हमारे संबंध नहीं थे और परिस्थिति ऐसी थी कि ये जो आतंकवादी हैं उनको छोड़ने के अलावा कोई और जरिया नहीं था। और इसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी चिंता थी कि एक बार आतंकवादी कंधार पहुंच जाते हैं तो क्या जो हमारे यात्री हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। और इन सारी परिस्थितियों को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक फैसला किया गया कि मैं कंधार जाऊं, और मैंने उस फैसले का पालन किया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि बड़ी चर्चा थी उन दिनों की तालिबान को कोई फिरौती दी गई है, और उन्होंने साफ तौर पर इसको नकारा। उन्होंने कहा भारत सरकार की तरफ से कभी कोई तालिबान को यात्री छुड़ाने के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं। आपका जो तीसरा सवाल है कि अगर कोई और सरकार होती तो ऐसी परिस्थिति में क्या करती, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंधार में, और ये मेरी व्यक्तिगत समझ है, कि जब वो जहाज अमृतसर उतरा था, उस जहाज को अमृतसर से आगे जाने नहीं दिया जाना चाहिए था। और अगर आप इतिहास में जाके देखिए, इतिहास में ऐसे कई वाक्य हुए हैं जहां पे भारत ने अपनी कूटनीति का उपयोग करते हुए, अपने इंटरनेशनल स्टेचर का उपयोग करते हुए जो अपहरणकर्ता हैं और पैसेंजर्स हैं उनको वापस लेके आया गया था। मेरे को याद है 1985 में इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज हाईजैक हुआ था चंडीगढ़ से। दुबई से जो उतने आतंकवादी थे उनको और पैसेंजर्स को रिहा करके वापस लाया गया था।
1983 में जब इसी तरह से चंडीगढ़ से हाईजैक करके हवाई जहाज लाहौर लेके गए थे, और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत ही कड़े शब्दों में प्रेसिडेंट जियाउल हक से ये कहा था कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, और वो सारे यात्री वापस आ गए थे। मैं दो सिचुएशंस को कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर सवाल ये है कि IC 814 को लेकर अगर कोई डिस्पैशनेट विश्लेषण होता तो हमारे पास कई ऐसे मौके थे कि हम उस जहाज को पहले दुबई और पहले लाहौर, उसके बाद दुबई और दुबई के बाद कंधार जाने से रोक सकते थे। वो नहीं हुआ, शायद अंदेशा था और एक यात्री को मारा गया था, ये भी सच्चाई है। और उस वक्त अंदेशा ये था कि और लोग हताहत हो सकते हैं। तो ये दुविधा तो हर सरकार के सामने रहेगी। मैं नहीं कह रही कि कोई इसमें गलती नहीं हुई, लेकिन पूरे ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आपको लगता है कि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर फुटबॉल खेला जाना चाहिए, राजनीतिक और तू मैं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की जानों की का सवाल था। और मैं जानती हूं कि मेरे बेटे का एक दोस्त था, उसके पिताजी भी उस विमान में थे और उस परिवार के साथ क्या गुजर रहा था मैंने फर्स्ट पर्सन में देखा है। ऐसे समय और उस वक्त तक टीवी आ गया था। जब तक आप 1982 या 1983 की बातें कर रहे हैं, शायद टीवी का इतना माहौल नहीं था और इतना प्रेशर इतनी जल्दी लोगों के थ्रू नहीं बनता था। वो समय भी और था और उस समय के जो प्रेशर्स थे वो भी और थे। ये एक दूसरा दौर था। इन सब को सोचते हुए आप किस कंक्लूजन पर आते हैं कि ये राजनीतिक फुटबॉल का मुद्दा है? देखिए, मेरा तो सदा से ये मानना रहा है कि किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर जो भी चर्चा है, जो भी बहस है, वो बड़ी संजीदगी से होनी चाहिए, बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए। और क्योंकि हर सरकार सख्त और कठोर फैसले करती है और परिस्थितियों को देखते हुए वो फैसले किए जाते हैं, तो जब भी ऐसी किसी विश्लेषण हो या कोई विश्लेषण करने की जरूरत हो, इसको एक बहुत ही गंभीरता से करने की जरूरत है। मेरा सदा ये मानना रहा है कि किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। Do you think at this moment, with the Congress having been in opposition for 7.5 years, 7.5 साल से कांग्रेस ऑपोजिशन में है, क्या ये माइंडसेट जो आप कह रहे हैं ये कांग्रेस के नेतृत्व में या सीनियर लीडरशिप में है कि किसी बात पर बिना राजनीति के कोई चर्चा हो सकती है? Oh, absolutely. I have absolutely no doubts about it. And I gave you the example of the COVID-19 discussion last night in the Lok Sabha. It was an extremely constructive discussion. You know, we've had a very devastating second wave of COVID-19, which caused unnecessary deaths. But I don't think there was any finger pointing. Rather, there was concern that with regard to the new variant, how do we find a modus operandi whereby this does not get repeated? So therefore, I am of the firm view that given the correct context and the correct setting, any issue in the Indian parliamentary discourse can be discussed absolutely constructively and in a dispassionate manner. You know, people who have the responsibility of representing 2 million odd people in the Lok Sabha, or those who represent their states in the Council of States, are very sagacious people. They are not frivolous people. And if given the right opportunity, they will discuss everything in a manner which furthers the national interest. तो फिर आपको अपनी ही पार्टी में G23 क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि चर्चा तो आपकी पार्टी में भी नहीं है, संसद से आप अपेक्षा करते हैं। देखिए, मैंने सोचा था कि आप किताब पे चर्चा करना चाह रही है, पर अगर आप ये सवाल पूछना चाह रही है तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, और उसका जवाब बिल्कुल सीधा है।
देखिए 2014 में हम लोग की लोकसभा चुनाव में हार हुई। 2019 में हम लोग लोकसभा चुनाव में फिर हारे। 2014 से लेकर 2021 तक इस देश में 44 विधानसभा के चुनाव हुए। उन 44 विधानसभा के चुनाव में से कांग्रेस पार्टी 34 चुनाव हारी, 4 चुनाव हम जीते और 6 जगह पे हमने एक कोएलिशन की सरकार बनाई। तो इसलिए इस बात पे चिंतन मंथन करना जरूरी है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को, जो इस देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक बहुत ही सशक्त संगठन रहा है, उसको और सुदृढ़ कैसे बनाया जाना चाहिए। तो G23 की, जिसको आप G23 कहते हैं, उसकी कभी मंशा ये नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए या कांग्रेस नेतृत्व के चुनौती दी जाए। उसकी मंशा तब भी वही थी, आज भी वही है कि हम अपने राजनीतिक दल को किस तरह से और सुदृढ़ कर सकते हैं। पर इसकी चर्चा हुई कभी? जी हाँ, उसके बाद हुई एक बहुत ही रचनात्मक मीटिंग, बैठक श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ, जिसमें सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दिसंबर 2020 में हुई, क्योंकि अगर आपको याद हो उन दिनों भी कोविड का कहर बहुत भयानक था और उसके बाद कई ऐसे कदम उठाए गए, जैसे जो कांग्रेस का आंतरिक चुनाव है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन है, उसको एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरे शेड्यूल का ऐलान किया गया। उसके अलावा कई और रचनात्मक कदम उठाए गए। तो ये कहना कि उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये गलत है। हमारे कुछ विचार थे, हमारी कुछ चिंताएं थी और हमने वो चिंताएं कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष रखी। वो जो चिट्ठी लिखी गई थी, वो चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को लिखी गई थी, कोई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को या भाजपा अध्यक्ष को थोड़ी लिखी गई थी। नहीं, तो उस चिट्ठी में जो आपने चिंताएं व्यक्त की थी, उनका समाधान हुआ कि नहीं? कि वो एक चिट्ठी थी, आपने अपनी चिंताएं व्यक्त की और उसके बाद कहानी वहीं की वहीं? नहीं, मैंने आपको कहा कि जो संगठनात्मक चुनाव है उसका ऐलान हुआ। उसके अलावा कई और ऐसे जो चिंताएं उस चिट्ठी में व्यक्त की गई थी, उनके बारे में उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, बट हाँ, आज भी हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को वापस उस मकाम पे लाने के लिए जिस मकाम पे कांग्रेस पार्टी इस देश में पिछले 70 साल से अपनी भूमिका निभाती रही है। वो काम अभी भी बाकी है और वो काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी जरूरी है और इस देश के लिए भी जरूरी है। तो ममता बनर्जी जब कहती हैं यूपीए इज नो मोर, कांग्रेस कैन नॉट बी एट द सेंटर of an opposition fight back against the BJP government, you think she's right? Well, I personally have a lot of respect for Ms. Mamta Banerjee. I recall I used to be then the National General Secretary of the NSUI when she was the National General Secretary of the Indian Youth Congress. This is going back to 1985, 1986, 1987. And I've had the occasion of working with her when she was a railway minister in the UPA government, and she was extremely kind to me and my constituency, Ludhiana, at that particular point in time. But the fact remains that the opposition, if it needs to come together, it has to be extremely mindful of each other's sensitivities. And the only way that you will be able to have a united front is that if you base it on a common minimum program, on a common agreed ideological paradigm. That is, according to me, the only way forward. Till the time the building blocks of opposition unity are not grounded in a substantive
program on which there is common agreement. The various ambitions and aspirations which are always at play in politics will never get subsumed. And so therefore, my advice or my suggestion to all those people who are working towards broader opposition unity is that the first step, the first and the foremost step is please put in place a program on which everybody can agree, and that should become the basis of going forward. पर मनीष तिवारी जी, आप तो थ्योरेटिकल बात कह रहे हैं, क्योंकि इशू ये है, और प्रशांत किशोर जी ने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समझती है, और कांग्रेस क्यों, राहुल गांधी कहीं ना कहीं समझते हैं, या कांग्रेस का नेतृत्व कहीं ना कहीं समझता है कि वो सेंटर पॉइंट है और सब कुछ उसके इर्द गिर्द होगा। और ममता बनर्जी ने उसकी उस मॉडल की वीकनेस बताई है कि राहुल गांधी तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है भी नहीं, कब देश में होते हैं कब बाहर होते हैं ये कई बार कांग्रेस के नेता खुद नहीं जानते, और वो अप्रोच करते रहते, उन्हें हफ्तों हफ्ते कोई जवाब नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी हैज अ डिवाइन राइट टू बी द फल्क्रम ऑन विच द ऑपोजिशन यूनिटी विल बी बिल्ट, या एक ऐसा ऑप्शन अब बन रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी को नहीं करना तो चलिए ममता जी ही बेटर है, और शायद गुलाम नबी आजाद इससे सहमत भी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हम इस पोजीशन में है नहीं कि कहीं जल्दी में हमारी 300 सीटें आ जाएंगी। ऐसा है नविका जी, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सुश्री ममता बनर्जी की बहुत इज्जत करता हूं, और उसके साथ साथ एक और वास्तविकता भी सही है। अगर आप गांधी परिवार की बात करते हैं तो इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य 1979 के बाद कभी सरकार में नहीं रहा है। नो गांधी हैज बीन अ पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सिंस 1989. So therefore, if being the fulcrum of opposition unity was the sine qua non on which they would base their politics, I don't think that they would keep away from government for such a long time. I think all of us are extremely cognizant of the fact that there is a need for opposition unity. Now, how that opposition unity would need to play itself out is something which I don't think anybody has really thought through. And so therefore, as I earlier pointed out, that personalities are not important. In my estimation of politics, and you may consider it to be theoretical, it is issues which are important. And once you have a common understanding of issues, the rest then becomes easy. So therefore, what should that opposition actually stand for? What is the alternative worldview that they're offering to the people of India? What is the alternative vision and program to back that vision, which they have in mind? That is exactly what the people want to know. The people do not want to know as to whether A is going to replace B or C is going to replace A. I don't think that is what people want to know. What people want to know is, come the 2024 elections, what is it that you are offering? मनीष तिवारी जी, आप शायद लेखक बन गए हैं इसलिए थ्योरेटिकल बात करते हैं। मुझे लगता है अगला पड़ाव आपका होगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि पर्सनालिटीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये दौर ऐसा है जहां ओनली पर्सनालिटीज आर इम्पोर्टेंट। एंड आपने कहा 1989 से कोई भी कांग्रेस का गांधी फैमिली का आदमी या औरत प्राइम मिनिस्टर स्टेक्स में या सरकार में नहीं रहा। आप तो मंत्री रह चुके हैं यूपीए में, और ये बातें कहीं सुनी नहीं है, ये अंदर से लिखी गई हैं संजय बारू द्वारा, कई लोगों द्वारा, कि किस तरह रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में था, पावर, नो अकाउंटेबिलिटी। और नंबर 2, 2014 में भी और 2019 में भी आपकी पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टीरियल फेस था वो राहुल गांधी था। वो जीत नहीं पाए, ये अलग मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री ना बनने का उन्होंने ऐसा कोई
अपना वचन ऐसा दिखाया नहीं दुनिया को कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं प्रश्न का सीधा जवाब देने से। Well, I must say, Davikaji, that you have absolutely an acute sixth sense. You know, the fact that you were able to discern that one of my secret aspirations is to become a professor in some university. You know, I must compliment you for the divine vision that you have. Insofar as 2014 or 2019 is concerned, I earlier pointed out, and I have no hesitation in acknowledging, that we lost both those elections, and we need to actually apply ourselves not only to those defeats, but the defeats which have taken place even in the assembly elections between 2014 and 2021. I had said this off the bat. But to answer your question with regard to the so-called remote control, let me tell you, I was a part of Dr. Manmohan Singh's government. And I can say this with the fullest of confidence and with the utmost sense of responsibility, that there was nothing called a remote control. This was completely and absolutely a canard. Mrs. Sonia Gandhi was the chairperson of the United Progressive Alliance. As the chairperson of the United Progressive Alliance, she had a broad understanding of what exactly the priorities of the government should be. There are certain priorities which she, of course, pushed also, Manrega being one of them, the Right to Information Act being the other, the Food Security Act being the third. You know, she has a certain ideological disposition, but to say that the government was being micromanaged by her is completely and absolutely erroneous. I have the greatest respect for Dr. Sanjay Baru also. He's a close friend, but with great respect, I don't agree with that. चलिए, तो फिर मुझे लगता है बहुत से लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे वो ये कहेंगे कि G23 में हैं आप, और आपने ममता बनर्जी के लिए रिस्पेक्ट भी अपनी दिखाई है, लेकिन शायद थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना कि कसर रह गई है, अभी कांग्रेस पर सीधा निशाना आप नहीं लगा रहे हैं, बच रहे हैं इससे। मैं आपने कहा मैंने 1990 में शुरू की थी अपनी जर्नलिज्म, तो अब 30 साल हो गए हैं, तो मतलब थोड़ी सी आप हमें भी दे दें, थोड़ा सा अगर आप समझ लें कि हम भी कुछ समझते हैं सत्ता के गलियारों में कब क्या चल रहा था, और हमने बहुत रिपोर्टिंग की है उस दौरान। आप जग जानी है, आप सब कुछ समझते हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तो इसलिए ऐसा कई बार अनकही भी समझ जाते हैं। मैंने कहा कि आप तो सब कुछ समझते हैं, आप जानी जान। हाँ, आपके मनीष तिवारी से जी जाने से पहले बस बहुत से सवाल हैं। एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, एक रैपिड फायर अगर कर लें, तो एक सवाल मेरा ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में कांग्रेस चीफ बनना क्या सही है, डिस्पाइट हिज लाइकिंग फॉर पाकिस्तान एंड इमरान खान? Yes or no? That's a decision which the Congress president has taken. So therefore it is her prerogative. रैपिड फायर है, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, रैपिड फायर है। नवजोत सिंह कांग्रेस के लिए पंजाब में येस और नो, इज ही गुड? Navika ji, I think we are too old to actually get into a yes or no binary on everything. I don't think there's a yes or no binary. To be very fair, it's a decision which the Congress president had to take. She's taken the decision. Some of us had reservations about that decision, but we've accepted whatever decision she has taken. अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस से निकल गए हैं, सही था ये फैसला कांग्रेस का या गलत? Well, Captain Amrinder Singh's exit should have been much better handled. I have said this in an interview earlier, that in my estimation, it was a botched operation. I have seen chief ministers being replaced from 1985 onwards. There was a very elegant and a dignified way of doing it. All that was required was
that Captain Amrinder Singh should have been conveyed that the party would like him to step down, and he would have stepped down, and he would have still been a part of the Congress party. राहुल और प्रियंका गांधी का हैंडलिंग ऑफ पंजाब सही या गलत? देखिए, ऐसा है कि the people who were charged with the remit of handling Punjab at that particular point in time could have done a much better job of it. I have explained. हरीश रावत की बात कर रहे हैं? Absolutely. I mean, it could have been much better. आखिरी सवाल जाने से पहले पूछना चाहती हूं मनीष तिवारी जी, आपका एक एक्सर्प्ट इस किताब का जो बहुत बड़ा डिबेट बन गया था, वो था इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ 26/11, और उसमें आपने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह सरकार उतनी मजबूत नहीं लगी, उसने जवाब नहीं दिया जितना कि उस वक्त हमें लगना चाहिए था. डू यू थिंक that was a major lapse in terms of the governance of Manmohan Singh's tenure? Look, there is a context to 26/11 which I have explained very, very elaborately in the book. Post our victory in the Kargil war, India entered into a very nasty phase of the proxy war which had been launched by Pakistan. So you had the IC-814 hijack, you had the attack on the Jammu Kashmir Assembly, you had the attack on the Parliament of India, you had the attack on the military base in Kalchuk, and then you had these bombings, across Indian cities, the Mumbai train bombings in Jaipur, and various other cities in Sarojini Nagar in Delhi. And so therefore, by the time you came to 26/11, there had been a lot of bloodshed which had taken place in those 8 years. And 26/11, in terms of its depravity, its sheer depravity, the sheer barbarousness of the assault, in my estimation, wanted or warranted a kinetic response. I have said this earlier. In fact, the first time I said it was on the 28th of November 2008 from a Congress podium, while the attack was still going on, that India explore kinetic options qua Pakistan in order to retaliate. And that's an opinion that I have held since then, and that's an opinion I hold even now. Well, for being forthright, for being straight, for dodging a few, answering a few, thank you very much, मनीष तिवारी. इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू. मैं उम्मीद करती हूं कि अगली साइलेंस और अगली मुलाकात जो है जल्दी होगी. ये जो डेमोक्रेसी का पाठ कांग्रेस देश को पढ़ाती है और कहती है कि हम टॉलरेंट होना चाहते हैं, हमें होना चाहिए, और ये जो सरकार है ये तानाशाह है, इनटॉलरेंट है, आप प्लीज़ मेरी तरफ से उनको एक विनम्र निवेदन दे दीजिएगा कि हम जैसे पत्रकारों से, हम जैसे चैनल से चर्चा का एक रास्ता खुला रखें. हम भी भारतवासी हैं, वो भी भारतवासी हैं, हम भी भारत के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, वो भी. तो डेमोक्रेसी में थोड़े टॉलरेंट वो भी हो जाएं तो अच्छा रहेगा. मैं आपके जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं. बस मेरी भी आपको सिर्फ एक छोटी सी विनती है कि जो भी प्रचार प्रसार जगत में हैं, उनको भी एक ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने की जरूरत है. और अगर वो ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, दूसरी तरफ से एक रेसिप्रोकेशन रहेगा, हम दोनों मिलकर इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत कर पाएंगे. बिल्कुल. और इससे बड़ी मैं क्या आपको एविडेंस दे सकती हूं कि आप हमेशा वेलकम हैं. टाइम्स नाउ पर आइए और अनएडिटेड जो आपको कहना है आप कहिए.
आपका व्यू पॉइंट हमेशा हमारे चैनल पर रहेगा और इससे बड़ी ऑब्जेक्टिविटी की क्या मिसाल मैं दूं आपको। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। होप टू सी यू सून अगेन। Absolutely, it's been a pleasure. Thanks, Navika.